In this video, we will discuss about barriers to communication. In the previous video, we have discussed the meaning of communication and its features and you can say various types of communication, that is formal and informal communication we have discussed. Moreover, we also discussed the, you can say, various elements of communication, and now we will be discussing about the barriers to communication. Means what are the various problems which may arise while communicating, means what are the various reasons because of which communication do not take place properly. So these are basically, these barriers to communication are classified on the 4 bases, and these are one by one we will be discussing. These 4 are: first is the semantic barriers. Semantic barrier. Semantic barrier. Next is the psychological. Psychological barrier. Third is the organizational barrier. Organizational barrier, and lastly, personal barrier. These are the various barriers to communication. First is the semantic barrier. Semantic, it is the branch of linguistic which deals with the meaning of word or symbol. It is the branch of linguistic which deals with the meaning of word or symbol. Here, because of the word or the symbol or the sentences, there is some, you can say, there is a difference in the meaning of the word or symbol or the sentences is there, and that is why miscommunication or not proper communication do not take place. So very first, under the various semantic barriers are, you can say, first is the badly expressed message. Badly expressed message. A message can be badly expressed. Now this badly expressed can be because of, you can say, you do not get the right word to say. Suppose when I want to say something, I am not getting the right word, or maybe I am not very proficient in any language also. So it may be possible that I may use the wrong word. So if I do not use the right word in the right context, so the meaning of the which will be with the receiver of the message will get, that will be you can say that will be different. So badly expressed message, ये क्यों होता है? मैसेज सही से नहीं एक्सप्रेस किया जाता है या मैसेज सही से नहीं कम्युनिकेट किया जाता है, ये दिया जाता है। जब हमें सही शब्दों का चुनाव हम नहीं करेंगे, गलत शब्दों का चुनाव करेंगे, मतलब गलत शब्दों का इन द सेंस कि हम सही शब्द का चुनाव इसके लिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास शब्द की जो वोकैबुलरी है, हमारे पास शब्द का जो भंडार है वो सफिशिएंट नहीं है, कम है। तो हम सही शब्दों का चुनाव सही जगह पे नहीं करेंगे तो अगला आदमी भी जो मैसेज उसके पास पहुंचेगा वो सही नहीं पहुंचेगा। तो इससे भेजने वाले के लिए और स्पेशली जो भेजने वाला है उसकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए। सो अगर से भेजने वाले की वोकैबुलरी सही नहीं है तो ये आपके लिए क्या चीज होगा, अगला आदमी इंफॉर्मेशन को सही से नहीं समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एजम्पशन कर लीजिए कि आपको एक कहा गया कि आपको बैडली एक्सप्रेस मैसेज में आपको ये कहा गया कि एक इंग्लिश में वर्ड है, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण मैं बस दे रहा हूँ। सपोज ये ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, रिटर्न में नहीं जा रहा। आपने सपोज ये कहा, आप कहना चाहें कि ये एक आइडियल मेथड है, तरीका है काम करने का। आइडियल मतलब एकदम बढ़िया, सबसे बेस्ट तरीका है, एकदम उपयुक्त तरीका है। बट आइडियल का मतलब होता है बेकार भी होता है। आइडियल मतलब बेकार भी होता है। मे बी मैंने उच्चारण मेरा आइडियल निकल गया तो ये आइडियल है, ये आइडियल है। अब आइडियल अगर से वो उच्चारण सही मेरा नहीं निकला तो आदमी क्या समझेगा, ये वर्ड है, मतलब बेकार में था। तो दैट इज ए बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, क्योंकि मैंने मैसेज एक्सप्रेस किया, मेरा जो मैं कन्वे करना चाह रहा था इस उच्चारण की जगह मैंने इसको लिया। अब हो सकता है कि मेरी वोकैबुलरी सही नहीं हो, मैंने गलत उच्चारण किया हो, तो अगला आदमी भी उस मैसेज को क्या समझेगा, वो गलत समझेगा। सो दैट इज, इसको कहेंगे बैडली एक्सप्रेस मैसेज। तो सही शब्दों का नहीं चुनाव कर पाना से भी मैसेज हमारे पास जो जाता है अगले आदमी के पास जो जाएगा वो सही नहीं पहुंचेगा। ये एक चीज है। नेक्स्ट, सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। अब एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं।
एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। तो सिंबल भी डिफरेंट मीनिंग, अगेन यहाँ पे भी ये सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ही वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं। अब इनकेस इसमें भी क्या हो सकता है कि मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, आपके पास मैं कह रहा हूँ कि ये आम रास्ता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आम रास्ता नहीं है, मतलब ये मैं किसी फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, आम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम रास्ता नहीं है। तो अगला आदमी जो भी जो रिसीवर भी होगा, ही शुड बी ऑल्सो प्रोफिशिएंट, उसकी भी वो भाषा उतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आदमी उसको सही से समझ पाए। आप अगर से कहेंगे ये आम रास्ता नहीं है, तो वो आम अगर से फ्रूट कोई को जानता है और ये एक जनरल चीज को नहीं जानता कि आम मतलब एक जनरल भी चीज है, उसको भी आम कहा जाता है, तो ये आम रास्ता नहीं है, ये तो और जनरल पब्लिक का रास्ता नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंबल में डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है, एक ही वर्ड के कई मतलब है। अब वहां पे वो कहीं सही मतलब नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि जो अगला या सेंडर या तो रिसीवर, या सेंडर या तो रिसीवर, दोनों में से कोई एक आदमी उस भाषा में मतलब परिपक्व नहीं है, मतलब प्रोफिशिएंट नहीं है, तो जिसकी वजह से वो मैसेज जो कम्युनिकेट होगा वो सही कम्युनिकेट नहीं होगा। तो सिंबल भी डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, तो और उसके एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकलने से अगला आदमी जो आप भेजना चाह रहा है, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसके पास भी वो सही ज्ञान होना चाहिए, और अगला आदमी जो वो रिसीव करना चाह रहा है मैसेज को, जिसको पास मैसेज सेंड किया गया है, उसके पास भी सही भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी सही मैसेज डिलीवर हो पाएगा। अदरवाइज अगेन देयर विल बी कम्युनिकेशन बैरियर, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मैसेज सही नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट, टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन जैसे हम हर एक ब्रांच में, हर एक फील्ड ऑफ नॉलेज में उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं जो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर से अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि डेबिट और क्रेडिट शॉर्ट में DR और CR लिखा जाता है। अब DR और CR भी आप जानते हैं कि इसका मतलब ये डेबिट और ये क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये भी जानते हैं। अब अगर से एक नॉर्मल मान लीजिए साइंस का कोई अगर से स्टूडेंट हो, और अगर से आर्ट्स का कोई स्टूडेंट हो, या अदर फील्ड का अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई भी आदमी अगर से होगा, तो वो डेबिट और क्रेडिट को नहीं आता। तो ये टेक्निकल जार्गन किस चीज के लिए है, वो अकाउंट्स और या कॉमर्स के टीचर, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अदर देन कॉमर्स जो टीचर है उनके लिए डेबिट और क्रेडिट को समझना इतना इजी नहीं। तो टेक्निकल जार्गन या टेक्निकल वर्ड्स वगैरह हमेशा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के रहिए कि हम किससे कम्युनिकेट करें। जरूरी नहीं कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो टेक्निकल वो जार्गन्स के बारे में वो इजीली वो जानता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका भाषा का किस तरह का ज्ञान है, किस तरह के आदमी से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनकेस अगर से हम कॉमर्स के टीचर को, अगर से कॉमर्स के स्टूडेंट को कोई टीच किया जा रहा है, या कॉमर्स के टीचर को कोई चीज बताया जा रहा है, तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट वहां पे यूज किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे उन्हें समझ में आ जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। लेकिन इन जनरल अगर से कहीं पे आप लेक्चर दे रहे हैं जहाँ पे आप साइंस के कोई पार्टिसिपेंट वगैरह हो जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग ना हो, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम होगी अगर से डेबिट और क्रेडिट आप यूज वर्ड करें। लेकिन इस तरह से ऐसे कई सारे हर फील्ड ऑफ नॉलेज में आपके रहेंगे टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं, तो हमें कम्युनिकेट करने के पहले से अवॉइड करना चाहिए कि हम अगर से किसी को ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जो टेक्निकल जार्गन वो उस फील्ड से अलग हटती है, तो उसके लिए हमें टेक्निकल जार्गन को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अगेन देयर विल बी बैरियर्स या प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन में। Now, faulty translation. Faulty translation. Faulty translation. Again, translation करना, गलत ट्रांसलेशन करना। Again, ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसलेशन करना। अब ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम दो भाषा का ज्ञान सही होना चाहिए, जिस भाषा में वो मैसेज आया है और जिस भाषा में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये दोनों चीजें हैं कि आपको अगर से ट्रांसलेशन करना है तो दो भाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, जिस भाषा में मैसेज आया और जिस भाषा में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन, जब दो भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं रहेगा, बढ़िया से ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप ट्रांसलेशन भी करेंगे तो वो बढ़िया ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। सपोज मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है और मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, मैं हिंदी के किसी चीज को मैं अगर से मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में ही उसे बताना चाह रहा हूँ और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हिंदी वाली चीज को मैं जबरदस्ती इंग्लिश में बताना चाहूंगा तो आपके पास वो गलत ही मैसेज जाएगा, सही मेरा ट्रांसलेशन नहीं होगा, फॉल्टी ट्रांसलेशन होगा।
सिमिलरली अगर मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी बढ़िया नहीं आती, और मैं इंग्लिश की चीज को हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके पास वो सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी जो मैं पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हिंदी वीक है। मैं इंग्लिश में सही से कह सकता हूँ, कन्वे कर सकता हूँ, आपके पास पहुंचा सकता हूँ, लेकिन हिंदी बारे में चीजों को कन्वर्ट करके ऐसे बताना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो या सही भाषा में सही चीजें आप ना समझ पाए। एक फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से भी मैसेज कम्युनिकेट सही से नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, जेस्चर डिकोडिंग। देखिए कई बार हम अगर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम कई बार अगर से कुछ बातें कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितने हमारे शब्द। हम जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम अपने हाथ से, हमारे आंख से, अपने जो भी गेस्चर से, हम अपने एक्सप्रेशन से क्या एक्सप्रेस करना, क्या शो करना चाह रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर जो डिकोडिंग है, गेस्चर हमारे या बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कोई और अगर से कर रहे थे, तो वहां पे क्या चीज हो जाएगा, सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं अगर से किसी को कह रहा हूँ आइए आइए आप आइए आइए, और मैं एक डंडा लेके उससे अगर से मैं कह रहा हूँ आइए आइए आइए, मैं उसे अगर से कह रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक उसे बुला रहा हूँ, आइए आइए बैठिए यहाँ पे, तो और मैं डंडा भी लेके उससे दिखा रहा हूँ कि आइए बैठिए, मैं मारने वाला हूँ। तो ये क्या है, सही मैसेज यहाँ से करना। वो सोचेगा कि मुझे सम्मान के लिए मुझे बुला रहे हैं, वो डंडा से मारने के लिए बुला रहे हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाए, तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। तो वहां पे बहुत सम्मान पूर्वक हमारे कहने का तरीका अलग है, और हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है, हम एक्सप्रेशन जो कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो वहां पे क्या चीज होगा, सही कम्युनिकेशन नहीं पाएगा, कि अगला आदमी समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअल में मारने के लिए उसे बुला रहा हूँ या सम्मान के लिए बुला रहा हूँ, या मैं आदर वर्ष से बुला रहा हूँ, किस कारण से बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग में भी एक तरह से वो ट्रांसलेशन का ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन आप एक्चुअल में ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज और कहीं ना कहीं वो उसका अर्थ गलत वो निकालेगा, क्योंकि वो वो कॉन्फ्यूजन वहां पे रहेगा कि वो क्या किस लिए बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी बातों से तो लग रहा है कि मैं बहुत सम्मान के लिए, मतलब बहुत आदर वर्ष नहीं बुला रहा, और इधर मेरा हाथ और डंडा कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। तो वहां पे क्या चीज हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज और हमारे कहने का जो वर्ड है और हमारी बॉडी लैंग्वेज वो अलग अलग मैसेज कन्वे कर रही है, अलग अलग मीनिंग पहुंचा रही है। तो यहाँ पे क्या चीज होगा, वो समझने में फिर अगेन वहां पे दिक्कतें आएंगी। अगेन अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, अनक्लैरिफाइड, क्लैरिफाई नहीं करना, क्लियर नहीं करना किस चीज को, कुछ चीजें का एजम्पशन, कुछ एज्यूम करना, कुछ मान के चलना। अब कुछ चीजें क्या होता है कि हम एज्यूम करके होता है कि ये हम कह दें और मान लें, अगला भी मान लें। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है और आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि वो आएंगे तो जरा इन्हें देख लीजिएगा। कोई पेरेंट घर से आप कह के जा रहे हैं कि कोई गेस्ट आने वाले हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, वहां पर देखिए क्लियर चीजें नहीं, देख लेने का मतलब क्या, आप पेरेंट घर से कोई आप पेरेंट चले गए और गेस्ट आ गए, अब उसके बाद आप अगर से सोचेंगे अच्छा पेरेंट ने मुझे कहा था इनको देखना, चलिए ठीक है, तो जैसे उनको आपने देख लिया, कहिए चलिए बैठिए, या बैठने के लिए भी कहा या नहीं कहा, आप सोचेंगे भैया देखने के लिए कहा था, आपने बहुत हुआ तो बैठा भी दिया, ये बैठिए। अरे देखने का मतलब ये होता है कि वो पेरेंट अगर से गेस्ट आ गया तो उन्हें बैठा लिए, उन्हें सर्व कर लिए, कुछ उनसे पूछे कोई प्रॉब्लम है, कुछ पानी वगैरह दीजिए, खाने के लिए दीजिए, ये भी वहां पे ही होता है। तो आपके गेस्ट को ये भी ट्रीट करना था, लेकिन पेरेंट ने अगर ये कर दिया कि बस उन्हें देखना है, मतलब उन्हें देखने का मतलब क्या, बस उन्हें फेस उनका नहीं देखना था, उनको बॉडी भी नहीं देखना था, उनको आंखों से नहीं देखना था, उनको ये केयर भी करना था, ये भी चीजें। तो वहां पे एजम्पशन, वहां पे आपको एज्यूम कर लिया, पेरेंट ने एज्यूम कर लिया, एजम्पशन उनका था, एज्यूम कर लिया कि हाँ पेरेंट वो आएंगे तो आप लोग उनका केयर वगैरह करेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलिए गेस्ट आएंगे तो उन्हें देख लीजिएगा। देखने का मतलब ये है, वहां पे क्लियर नहीं बताया कि देखने में क्या क्या करना है। अब देखने के बाद उन्हें खाना भी खिलाना है, चाय भी पिलाना है, सोने बैठने के लिए भी कहना है, क्या कहना है कुछ क्लियर नहीं बताया। तो हो सकता है कि आपने बहुत आइए बैठ जाइए और पानी लेके दे दिया, उसके बाद वो बैठे हैं तो बैठे ही रह गए, और आप उनको सामने बैठ के देख रहे हैं, या तो उनको छोड़ के भी चले गए। तो ये चीजें क्लियर नहीं की गई, तो कुछ चीजें एजम्पशन वाली चीजें होती है, तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन आपका सही प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो अनक्लैरिफाइड वहां से एजम्पशन है, कुछ चीजें एज्यूम करके ली गई थी, और जो एज्यूम वाली चीजों को क्लियर नहीं किया गया था, वो पेरेंट मान के एज्यूम करके चल रहे थे कि क्या क्या करना है, और आप वहां पे क्या समझेंगे, वो उसमें डिफरेंसेस हो सकता है।
तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसको भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि ये सारे हमारे किसमें आते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, अब साइकोलॉजी देखिए किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड। इट इज रिलेटेड विद इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारी मानसिक स्थिति क्या है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, उसके ऊपर ये बैरियर्स ये भी है साइकोलॉजिकल बैरियर। हमारी मानसिक स्थिति क्या है उससे भी क्या चीज है, कम्युनिकेशन में फर्क पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी इमोशनल स्टेटस, हमारा साइकोलॉजिकल क्या स्टेटस है या स्टेट ऑफ माइंड अपना क्या है, ये हमारी ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम क्या चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और या किस तरह से कम्युनिकेशन हमें किया जा रहा है, हमें किस तरह से चीजें कही जा रही या किस तरह से मैं किसी चीजों को कह रहा हूँ, वो हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें निर्भर करती हैं और उसका मीनिंग भी इसी हिसाब से रहेगा कि हमारी मेंटल स्टेटस उस समय क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर, फर्स्ट इज प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, प्री मैच्योर, प्री मतलब पहले का, इवेल्युएट करना, पहले ही उसका पता सोच लेना दिमाग में। पहले सपोज इनकेस कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं, जैसे बच्चा बोलना चालू हुआ, ये क्लास में ही होता है, कुछ स्टूडेंट्स टीचर से कहना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट बोलने के लिए तैयार हुआ, कुछ एक दो वर्ड कहा ही टीचर, बड़े बड़े मुझे पता है तुम क्या कहने वाले। मतलब यहाँ क्या है, वो कहने से पहले ही आप ये उसको इवेल्युएट करेंगे वो क्या कहना चाह रहा है। पूरी बात तो सुनने के बाद ही तो हम सही कह पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हम कभी कभी पहले से इवेल्युएट किसी के बारे में कर लेते हैं कि नहीं वो कहना जो चाह रहा है मुझे पता है आप क्या कहने वाले। तो ये हमेशा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि आदमी पहले से किसी के बारे में गेस कर ले कि अगला आदमी क्या कहने वाला है। तो पहले से इवेल्युएट करना है कि अगला आदमी क्या कहने वाला है, ये इसमें दैट इज ए साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से बचा हुआ है वो पूछने वाले क्या है, एक दो वर्ड से ही मैं पहले से गेस कर लूं, या तो वो उठे तभी मैं गेस कर लूं या एक दो वर्ड के बाद ही मैं गेस कर लूं कि नहीं मुझे पता है हाँ क्या कहना चाह रहा है। तो दैट इज नोन एज प्री मैच्योर इवेल्युएशन, पहले ही इवेल्युएट करना, कहने से पहले किसी के बारे में समझ लेना कि क्या कहा जा रहा है। तो ये इससे क्या हो जाए, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, हमें सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। अब अटेंशन हम तो नहीं दे रहे हैं। अब क्लास में कई बार ये होता है, हम क्लास में टीच अगर से कर रहे हैं और बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अगेन वहां पे क्या उनका साइकोलॉजिकल वो उनका इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड उनका बढ़िया नहीं है, सही नहीं है, वो कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, वो अटेंटिव नहीं है। तो अब मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो वहां पे सही कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अटेंशन नहीं है, अटेंशन की कमी है, लैक ऑफ अटेंशन। तो जब अटेंशन ही नहीं देंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा नहीं, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं देंगे तो सही से बातें सुन नहीं पाएंगे, और जब सुनेंगे नहीं तो सही समझेंगे नहीं, जब सही से सुनेंगे नहीं तो सही से समझने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसी के लिए लैक ऑफ अटेंशन की वजह से ये क्या चीज होगी, देयर विल बी यू कैन से मिसकम्युनिकेशन और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का भी ऐसा ही साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है। क्योंकि उस समय जब आप ध्यान देना था आपकी माइंड कहाँ पे होनी चाहिए थी, जो बातें कही जा रही उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहां पे आपका अटेंशन नहीं था, तो देयर विल बी अगेन कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा। ट्रांसमिशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन। जैसे हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ट्रांसमिट होती है, जैसे पावर हाउस से जितनी बिजली जा रही है और हमारे घर तक आती है तो बीच में कुछ ना कुछ लॉस भी होता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन में भी लॉस होता है बाई ट्रांसमिशन, जब से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन होती है, स्पेशली ये रिटेन कम्युनिकेशन सॉरी ओरल कम्युनिकेशन की। जैसे मुझसे कोई बात कही गई और मैं जाके उसी बात को मुझे कहा कि जाइए उसे ये बातें कह दीजिए, मैं अगर से किसी और से जाके कहूंगा तो कुछ ना कुछ चीजें क्या चीजें ट्रांसमिशन वहां से मेरे पास आई, और मैं जब दूसरे को जाऊंगा कहने के लिए तो कुछ ना कुछ वहां पे कुछ एडिशन हो जाएगा, कुछ डिडक्शन भी हो जाएगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, कुछ चीजें जो रिलेवेंट चीजें वो डिडक्ट हो जाएगी। इसी तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन कई पर्सन से ट्रांसमिशन जब होता है, स्पेशली ओरल कम्युनिकेशन, तो वहां पे कुछ चीजें ओरिजिनल मैसेज जो कन्वे होने तक ओरिजिनल मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है। सिंपली कह लीजिए जैसे आप लोग कुछ न्यूज वगैरह सुने और उस चीज को मैसेज को अपने वर्ड्स में किसी को फॉरवर्ड किया, अगला आदमी ने किसी दूसरे के पास उसी मैसेज को अपने वर्ड्स में फॉरवर्ड किया,
तो जब आप अपने से ओरल कम्युनिकेट करते हैं एक ही मैसेज को, तो कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिशन या तो कुछ डिडक्शन कर लेते हैं, कुछ चीजें नई ऐड कर लेते हैं, कुछ चीजें पुरानी। मे बी विलिंगली नहीं होता, अनविलिंगली ये हो जाता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, लॉस तो होता ही है, कुछ एडिशन के साथ में होता है। तो मैसेज का ओरिजिनल मीनिंग जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ओरिजिनल मीनिंग जो मैसेज का जो फ्रॉम द सोर्स किया था और फ्रॉम द यू कैन से अल्टीमेट जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है, वहां पे वो कुछ ना कुछ दूसरा कुछ मैसेज ही कन्वे हो जाएगा या दूसरा ही मैसेज उसका मीनिंग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास, मुझे विश्वास ही नहीं, अगले आदमी कहना जो चाह रहा है उसके पर मुझे मेरा कोई विश्वास ही नहीं, तो वो कहेगा भी तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तो क्या चीज होगा, डिस्ट्रस्ट। मुझे विश्वास ही नहीं है तो मैं उसके मीनिंग को, वो जो कहना चाहेगा उसको मैं अर्थ उसको लूंगा ही नहीं, एज इट इज, उससे इसकी बात को मैं मानूंगा ही नहीं। जो मैं मानूंगा ही नहीं तो बात ही करूँ। वहां पे क्या चीज होगा, अगेन बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट ही है, क्योंकि मुझे मेरे मेंटल स्टेटस और अगले का मेंटल जो सेंडर और रिसीवर का दोनों का एक दूसरे के वजह विश्वास नहीं होगा, तो देयर विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगेन देयर विल बी वो पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, क्योंकि बिकॉज देयर मेंटल स्टेटस और इमोशनल स्टेटस इज somewhat disturbed, so that is why there will be distrust. If distrust is there, then there will be barriers to communication is there, means it will act as a barrier, सही communication वहां पे भी नहीं होगा। Rest of the two barriers to communication we will discuss in the next video.